Good morning, students. So, as we are discussing chapter 4 quadratic equation of class 10th, in this chapter we have completed exercise 4.1 and we have started exercise 4.2 in the previous video. And in previous video we have completed up to question number 3. Okay, and today we will start question number 5th of exercise 4.2. In this exercise we are solving quadratic equation or questions by factorization method only. Okay, so come to the question number 5th. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13, find the other two sides. So this is hypotenuse 13 centimeter. Okay, we know that ABC is a right angle triangle, right angle at B. Okay, and hypotenuse 13 centimeter, and the question it is saying 7 centimeter less than its base. What is एल्टीट्यूड? जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है. सो ए बी एल्टीट्यूड है, आप इसको परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कुछ भी बोल सकते हैं, और दिस इज बी सी आपका बेस है. सो एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर इसके बेस से कम है और हाइपोटेन्यूज 13 है. ओके, सो वी डोंट नो व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज एल्टीट्यूड. सो वी कैन सपोज लेट द बेस ऑफ द राइट angle triangle B equals to x centimeter. Okay, if base is x centimeter, so what is altitude? So altitude is 7 centimeter less than its base, so we can write x minus 7, or here then the altitude of the right triangle is equal to x minus 7 centimeter. And we know that in right angle triangle there is a formula, that is Pythagoras formula, we can say Pythagoras theorem. In that theorem, in the previous classes we have already discussed about this theorem, that is square of hypotenuse is equals to square of perpendicular plus square of base. So here we will use Pythagoras theorem. Okay, on applying Pythagoras theorem. Okay, so square of hypotenuse equals to square of base plus square of perpendicular, or we can say altitude. Okay, so hypotenuse is 13 centimeter equals to square of base is x centimeter, is x square, plus square of altitude is x minus 7 centimeter. Okay, so here we can say हाइपोटेन्यूस पे स्क्वायर है. अगर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अगर हटाएंगे हम, इफ वी रिमूव द स्क्वायर फ्रॉम हाइपोटेन्यूस, देन दिस विल कम अंडर द रूट. तो ये पूरा पार्ट किस में आ जाएगा? अंडर द रूट आ जाएगा. तो 13 इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर. ओके, so 13 centimeter equals to, this is x square, so whole square of x minus 7, this is a square minus b square, this is equals to a square यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2
x multiply 7, this is 14, 7 2 14, minus 14 x plus b square, और b 7 का स्क्वायर इज 49. ओके, 13 इक्वल्स टू x square, this is 2x square minus 14x plus 49. ओके, अभी हम देख रहे हैं ये यहाँ से बाहर नहीं आएगी कोई भी, क्योंकि किसी के पेयर नहीं बन रहे हैं. सो इस पर हम दोबारा से स्क्वायर लगा देते हैं 13 पे, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा. सो स्क्वायर ऑफ 13 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49. ओके, सो स्क्वायर ऑफ 13 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49. okay, and square of 13 is 169. 13 multiplied by 13, that is equals to 169, equals to 2x square minus 14x plus 49. ओके, 169 को LHS से RHS में जाते हैं, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0. ओके, सो 2x स्क्वायर माइनस 49. ओके, 169 में से प्लस के 49 जाएंगे तो माइनस के 120 बचेंगे. ओके, 0 6 में से 4 गए 2, 120 इक्वल्स टू 0. नाउ टेक 2 कॉमन, 2 कॉमन आ जाएगा, दिख रहा है. सो x स्क्वायर बचेगा, 14 में से 2 कॉमन आएगा 7x, इसमें से 60 रिमेनिंग, 120 में से 0. 2 को जब हम इधर ले जाएंगे तो हेयर इट हैज़ मल्टीप्लिकेशन साइन विथ होल द इक्वेशन, इट विल गो in division, and 0 upon 2, that is also equals to 0. X square minus 7x minus 60 equals to 0. Okay, now as we can see, a is equals to 1. What is the coefficient of x square? This is equals to 1, and c is minus 60. Okay, so हमको 7x को इस तरह से माइनस 7x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, माइनस 60 आना चाहिए. ओके, और प्लस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस 7x. सो एज वी कैन सी 7x, यस, इफ वी मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाई 5, ओके, माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 5, दिस इज माइनस 60. ओके, सो वी टेक माइनस 12x प्लस 5x, सो माइनस 7x ही बचेगा, और मल्टीप्लाई करने पे भी माइनस 60 आ रहा है. सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. नाउ मेक द पेयर. सो हेयर वी कैन टेक x कॉमन फ्रॉम द एक्स स्क्वायर माइनस 12x. यहाँ पर x बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन आएगा, और 12x में से x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे ओनली 12 बचेगा, प्लस 12 5 या 60 होते हैं, तो हम इजीली यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ भी x माइनस 12. ओके, 12 5 या 60, तो 12 रिमेनिंग होगा. मैंने कहा था आपसे कि अगर ब्रैकेट में दोनों जगह वैल्यू सेम है, तो हम इस क्वेश्चन जो सेम कर रहे हैं. हमने स्प्लिटिंग जो मेथड यूज किया है फैक्टराइजन का, वो हमने एकदम सही स्प्लिट किया है. सो हम इसके साथ इसको लिख देंगे, दैट इज x प्लस 5, और दिस इज x माइनस 12. ओके, नाउ x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, इसको पहले 0 इक्वल्स टू लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए. सो x इक्वल्स टू माइनस 5, और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू 12. So here we got two values of x, one is 12, one is minus 5. So we know that the side of a triangle cannot be equals to 0. तो जो ट्राइंगल की साइड है वो, सॉरी नॉट 0, माइनस 5. ओके, माइनस 5 नहीं हो सकती है साइड. सो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12. ओके, तो हेयर वी राइट द side
of a triangle cannot be equal to -5 सेंटीमीटर। ओके, तो साइड कितनी हो जाएगी ट्राइंगल की, दैट इक्वल्स टू 12, और एक्स हमने क्या माना था, ये बेस था। सो द बेस ऑफ राइट triangle equals to 12 centimeter. Now altitude, then altitude equals to x minus 7, so value of x is 12 minus 7 centimeter, that is equals to 5 centimeter. Okay, now come to the next question. Next question: a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. So pottery article means that is जो बर्तनों का ओके काम होता है, उसे कहते हैं। सो कॉटरी इंडस्ट्री है, वो एक सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है डे, मीन्स निश्चित है, उसका सर्टेन है। ओके, it was observed on a particular day that the cost of product of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. So एक दिन ऑब्जर्व किया गया, वो क्या ऑब्जर्व किया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट है ईच आर्टिकल की रुपीज में, वो है इक्वल्स टू वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मीन्स अगर हम आर्टिकल को डबल करके उसमें 3 प्लस कर दें, सो ईच आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी। ओके, दोबारा समझ लेते हैं। जो आर्टिकल की कॉस्ट है रुपीज में, वो ऑब्जर्व किया गया एक पर्टिकुलर डे में कि वो इक्वल है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्लस 3। ओके, मीन्स आर्टिकल्स को हम डबल करके उसमें 3 ऐड कर दें तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, टोटल कॉस्ट उस दिन में कितनी थी, दैट इज इक्वल टू 90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ओके, so we have to calculate number of article produced and cost of each article. So solution, we don't know how many articles produced in a certain day, so we can assume let the total number of articles produced in a day इक्वल्स टू एक्स। ओके, हमने जूम कर लिया कि कितने हैं एक दिन में टोटल आर्टिकल, एक्स है। ओके, नाउ एज वी नो दैट कि जो कॉस्ट है वन आर्टिकल की वो कितनी बताई है सिचुएशन के हिसाब से, दैट इज इक्वल्स टू कि किसी दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उनका डबल करके 3 प्लस कर दें। ओके, नाउ देन the cost of each article equals to, that is equals to 2x plus 3। ओके, ट्वाइस करके 3 प्लस करें। नाउ इट इज गिवन दैट इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट, ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं एक दिन में और ये ईच आर्टिकल की कॉस्ट है। सो ईच आर्टिकल की कॉस्ट से हम टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल इन अ पर्टिकुलर
डे, मीन्स वन डे में कितना कलेक्शन हुआ, दैट इज, तो दैट इज इक्वल्स टू 90. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, okay, total cost of production on a particular day equals to 90 rupees. Now x multiply by 2x plus 3 equals to 90. Okay, x multiply by 2x, that is 2x square, and x multiply by 3, this is 3x equals to 90. Now 2x square plus 3x minus 90 equals to 0. इसको RHS से मैं LHS में ले गया. Okay, now a is 2 and c is minus 90, so 2 multiply by minus 90, 2 multiply by minus 90 equals to minus 180. Okay, so 3x को मुझे ऐसे स्प्लिट करना है दैट कि स्प्लिट करने के बाद अगर मैं स्प्लिट टर्म का मल्टीप्लाई करूँ तो कितनी इक्वल्स आए, माइनस 180. ओके, और अगर ऐड करूँ तो कितना आए, प्लस 3x. ओके, सो इफ़ वी मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस 12, 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस 12, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 180. ओके, सो हियर वी कैन राइट 2x स्क्वायर माइनस 15x, सॉरी प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 क्योंकि प्लस का आना चाहिए 3. ओके, तो हम 15 को प्लस लेंगे और 12 को माइनस लेंगे. सो यहाँ पे x से कॉमन है, सो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x इज रिमेनिंग प्लस here 15 इज रिमेनिंग. ओके, माइनस here we can take 6 common. Okay, 6 common, so 6 2 ja 12, 2x और here प्लस c. अगर माइनस से हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ही आएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन इन दोनों का बाहर ले लिया है. प्लस 15, 15 6 जा 90. ओके, सो x माइनस 6 एंड 2x प्लस 50, इसको इसके साथ. Now x minus 6 equals to 0, x equals to 6 and 2x plus 15 equals to 0. 2x equals to minus 15, प्लस का माइनस चला जाएगा उधर और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो माइनस 15 अपॉन 2. सो प्रोडक्शन किसी भी दिन में नेगेटिव नहीं हो सकता है. So minus 15 upon 2 is not the answer. What is the answer? 6 is the answer. So here we will write the total production of article cannot be in negative. Okay, नेगेटिव नहीं हो सकता है. सो what we have assumed, the x is total number article produced in a day. So the total number of articles produced in a day, that equals to 6, and cost of each article equals to 2x plus 3. So value of x is 6, so 2 multiply by 6 plus 3, 6 2 is 12 plus 3, that equals to 15.
rupee. Okay, so exercise has been completed from my side. So one question is remaining, that is question number 4. Okay, find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. Okay, so solve this question. Okay, thank you.